اوکے بیٹا, جزاک اللہ خیر. چلیے پھر ابھی آگے بڑھتے ہیں, آیت نمبر 99. کیا یس آپ نے 99. انجم ذرا مجھے بتائیں گے یہ صحیح بخاری کی کتاب میں سے لیا ہے یا کسی نے بولا ہے تاریخ کتاب یہ نا میرے پاس تفسیر ابن کثیر کی بک ہے, تفسیر ابن کثیر, اور اسی میں لکھا ہے صحیح بخاری کی روایت. اٹ از ود دا ریفرنس. یس تفسیر ابن کثیر از ان اردو؟ yeah, what I have is in Hindi and in Urdu also it is available. Okay. And in English also. In all the languages it is available, plus in that Bukhari ki hadith hai. Yes, with reference I get all the hadith in the tafsir, so I read the hadith from here so that कोई word हमारा गलत ना हो जाए ना writing में. अच्छा, और एक बात ये बताना है कि फरिश्तों को आपको पता है ना کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, سورہ رحمان میں کیا کہا گیا ہے؟ جنت اور دوزخ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسان اور جنات کے لیے, فرشتوں کے لیے نہیں ہے. فرشتوں کے لیے ان کو وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی نہیں, تو ان کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے, وہ نور سے بنے ہوئے ہیں. پلس فرشتے اگر کسی کی جان بھی لینی ہو نا, اور اگر کوئی مر جاتا ہے نا, کسی کے بھی گھر میں اگر کوئی گزر جاتا ہے, تو اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے بجے گزرے تھے, تو آپ صحیح وقت نہیں بتا سکتے. تو وہ یہ موت کے فرشتے کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا انجم؟ اسرائیل. یس, زید آتا ہے نا اس میں. یس. ہاں, تو یہ اسرائیل علیہ السلام ہے نا, یہ اللہ کو شکایت کرتے, بولے میرے کو اتنا خراب کام کیوں دیا تو نے اللہ؟ ابھی صاحب میرے کو چلائیں گے, میرے سے نفرت کریں گے, کیونکہ میں ہی ان لوگ کو موت دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھیے آپ یہ سنتے ہوں گے روز, ابھی تو بہت موتیں ہو رہی ہیں, تو آپ سنتے ہوں گے کہ ارے اللہ وہ گزر گیا, سو اینڈ سو گزر گیا, فلاں گزر گیا. بولے کیا ہوا, کیسا گزرا؟ تو بولے اس کو کورونا ہو گیا تھا, یا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا. ایسا بولتے ہیں نا ہم لوگ, جو غلط ہے. اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ملک الموت لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا نام کوئی بھی نہیں لے گا. ان لوگ یہی بولیں گے کہ کینسر میں مر گیا, کورونا لے کے گیا, یا ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی بھی بندہ نہیں بولے گا کہ ملک الموت آیا تھا اور لے گیا. ابھی آیا یہ سمجھ میں آپ کو کتنا رانگ ہے جو ہم بولتے ہیں؟ جب تک موت نہیں آئے گا تو کورونا کدھر سے آئے گا؟ Am I right, انجم؟ یس باجی, بالکل. ہاں, بس اوور ٹو انجم. الحمدللہ. 99. یس 99. اور ایک بات اور ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ فرشتے جو ہے نا اللہ کے حکم سے سب کام کرتے ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے موسٹ آف دا کام کر رہے ہیں. دیکھیے ابھی جبریل علیہ السلام, اگر قرآن نازل جبریل علیہ السلام کے ذریعے کیا گیا تو انہوں نے وہ ہم تک ہدایت پہنچائی, ہمارا کام کیا, رائٹ. پھر میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں, تو کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے, ہماری خدمت کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے. اگر موت کے فرشتے آتے تو اللہ کے حکم سے. اگر وہ اسرافیل علیہ السلام کو تو جسٹ امیجن, وہ جب سے دنیا بنی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ٹرمپٹ لے کے کھڑے ہیں. ہاؤ اسٹرانگ ہی مسٹ بی. اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نیچے نہیں رکھتے وہ سور, اور وہ پوری دنیا میں اس کی آواز آئے گی, تو کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ٹرمپٹ ہوگا؟ تو پھر وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا. الحمدللہ. اور وہ جنت کے داروغہ ابھی بھی جنت کے انٹرنس پر کھڑے ہیں, اور دوزخ کے داروغہ ابھی بھی وہاں کھڑے ہیں, اور حفاظت کے فرشتے تو ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور کرامن کاتبین وہ بھی فل ٹائم اپنا کام کر رہے. کس کی ڈیوٹی دے رہے؟ حکم اللہ کا, پر ہمارے کام میں لگے ہوئے, ان سے ہم کیسے دشمنی کر سکتے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ ہمارے وہ دوست بن جائے, اور ہم بھی انہی کو کاپی کرنے لگے انشاءاللہ. آمین. ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد 99. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ, اور بلا شبہ, انڈیڈ, کوئی شک نہیں اس میں, انزلنا,
नाजिल फरमाई हमने, इलैक तरफ आपके, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक को आप सर्कल करते हैं, अनम इसको सर्कल कर दो, इलैक, इलैक जो थर्ड वर्ड है यहाँ पर, तरफ आपके, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें काफ जो है ना उसको सर्कल करने का, ताकि आपको समझ आए कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। अल्लाह ताला फरमा रहे, इंडीड बिलाशुबा नाजिल फरमाई हमने, यानी अल्लाह ने, तरफ आपके, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या, आयातिम बय्यिनात। आयात इज अ प्लूरल ऑफ आयत, निशानियां, बय्यिनात वाजे, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल उसमें जिसमें कोई कंफ्यूजन भी ना हो, जिसमें कोई डाउट भी ना हो, ऐसी आयतें। वमा यकफुरु, और नहीं कुफ्र करते, और नहीं इनकार करते। कुफ्र का मतलब क्या होता है, इनकार करते। बिहा, उनका, हा किसके लिए आया है, उन आयात के लिए। और नहीं इनकार करते, बिहा, उन आयात का, इल्ला, मगर, सिवाय, अल फासिकून, जो फासिक है, जो फासिक है उनके सिवा कोई इन आयतों का इनकार नहीं करता। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमको कुरान पाक में ही प्रूफ देते हैं, ये अल्लाह की तरफ से अगर हमको ये बात अल्लाह ताला फरमा रहे, देखिए क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल किया, और इसके अंदर आयत है। कितनी आयत है बताओ मुझे, कौन बताएगा जल्दी, एक जन, कनीज बताओ कितनी आयत है कुरान में, जिसको भी पता है हाथ ऊपर करो। फहीम सुल्तान अनम्यूट है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी, बेशुमार आयतें हैं बाजी। अरे नंबर बताओ मुझे। That's a good idea. वेरी गुड। नहीं नहीं, चलिए समीना मुफीज। अरे बेशुमार बोले तो क्या होते हैं? नहीं नहीं बाजी, इट इज अ वेरी सिंपल नंबर, लेट देम नो, इट इज वेरी इजी। नहीं अंजुम, आई वांट टू टीच देम ना, हाउ कैन बेशुमार। बेशुमार राइट है ना आंसर, यस। कैसा राइट है? Is it 6,600? No, we are very close Anam, we are very close. Okay. अच्छा मैं बता देती हूँ, चलिए 6,000 होएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई को खाली फुकट का बेचारे लोग को सता रही है। नहीं सताती बाजी, मुझे मजा आता है इसलिए क्योंकि ये नंबर बहुत इजी है टू रिमेम्बर। अमल में क्या फर्क पड़ता है? अम्मी बताते हैं, रुको। नहीं नहीं अमल में फर्क पड़ेगा जी, एक मिनट। हाँ 6,666 6,666 यस, 4 6 है, 6,666 6,666। बाजी ये जो आयत आई है ना, व्हाई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस, बिकॉज अल्लाह ताला ने बेचारी रजिया मेरे साथ 18 साल से पढ़ा रही है और रोज डांटी खाती थी, तो अभी नहीं बोलती है वो। अभी छोड़ दो। अच्छा ओके। अभी रोज पढ़ाते थे ना हम लोग, आज हमारी 15 आयतें हुई, आज हमारी 10 आयतें हुई, फिर अभी रजिया ने छोड़ दी वो सब बोलना। इट डजंट मेक एनी सेंस। वी आर, तुम और मैं तो कभी कभी 2 ही आयतें करते हैं। यस बाजी बिल्कुल। क्या मतलब होता है 2 हुई और 4 हुई और 8 हुई और कितनी थी और कितने नबी थे? इससे हमारे अमल में, ये मेरी टीचर गई थी, छोटी बच्ची तुम्हारे से भी बहुत छोटी थी वो, उसने बोली ऐसे सवाल मत करो जिससे आपके अमल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इतना अच्छा अभी तुमने वो पूरा बोले, मैंने वो पूरा लिख ली, अब ये आयतें कितनी थी, वो बोलने का क्या मतलब होता है? मेरा बोलने का मतलब जो है ना बाजी इसलिए है, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई माई सेल्फ, यू आर राइट, इन नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमारे पास है ना सिलेबस और किताब सिर्फ एक है, पूरी लाइफ हमको सिर्फ एक किताब पढ़नी है, ओनली वन बुक वन सिलेबस। और दुनिया की इतनी किताबें पढ़ते हैं और उनका सिलेबस मिलता है कि एग्जाम में कितने चैप्टर आएंगे, तो हम बच्चों को बोलते हैं बच्चा तेरे 5 चैप्टर्स है ना, हो गए क्या, 5 चैप्टर पढ़ ले तूने?
तो how much we focus on covering the whole syllabus. एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन है तो बेटा तुमको 10 अटेम्प्ट करने हैं, तो we focus on that. But Quran में when it comes to Quran, why do we want to remain like incomplete or undone वाला हिसाब नहीं रहना चाहिए. Only that is my reason, because I see when I teach my kids for school कि बेटा ये तुम्हारा इतना चैप्टर पूरा होना चाहिए, इतनी लाइंस, टीचर ने बोली 5 लाइंस लिखो तो एटलीस्ट 5 लाइंस तो लिखना ही है. तो अल्लाह ताला का सिलेबस ये 6666 आयत, नंबर भी इजी है रिमेम्बर करने को. प्लस क्यों हम एक भी आयत को छोड़े, एक ही बुक है हमारे पास, पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है हमने, एक ही सिलेबस है. अल्हम्दुलिल्लाह, ओनली दैट इज द रीजन आई फोकस ऑन दिस. अदरवाइज अमल में तो एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे. कुरान में गौर व फिक्र करने का मतलब है तुम एक आयत को पढ़ो, उसको समझो, उसके मुताबिक अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो. एक आयत, एक ही, बस एक. 1000 2000 है, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है. एग्जैक्टली. ओके बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हर आयत को बिल्कुल क्लियर वाज़े फरमा दिया. इसमें कोई डाउट नहीं है, ना किसी में कोई कंफ्यूजन है, ना कोई छुपी बात, ना कोई ताना देने वाली बात. हम लोग तो हमारी बात कैसे करते हैं, देयर आर बात कहते कुछ है, करने का मतलब कुछ होता है, बोलते कुछ है. बट अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वेरी क्लियर इन हिज स्पीच, एंड बहुत क्लियर होने के बावजूद उसके अंदर अभी हमने बड़े हिदायत है, गाइडेंस है, खुशखबरी है. तो फिर इसके बावजूद अगर इससे इन आयतों का कोई इनकार करे तो फिर वो सिर्फ फासिक हो सकते हैं, नाफरमान हो सकते हैं. बाकी ऐसे कोई नहीं जो इस पर ईमान न लाए. जैसे अभी हम पढ़े अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया, कि वो जैसे ही उनको आयत बता दी गई, उनके सवालों के जवाब मिल गए कुरान के जरिए, तो वो जल्दी से ईमान ले आए. उन्होंने कोई हेजिटेशन नहीं किया कि बस खत्म हो गई बात और कोई मकसद नहीं था उनका. लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया, वो अपनी बात से पलट गए. बाकी सारे यहूद वो पलट गए अपनी बात से, और उन सब ने कहा कि अरे ये अब्दुल्ला बिन सलाम तो किसी काम का नहीं, ये तो झूठा है और कोई काबिले भरोसा नहीं, और इसके बाप भी वैसा ही था और इसकी फैमिली भी वैसी थी. तो हम लोग का भी ये ना हो, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फासिकीन के अलावा और कोई ऐसा काम नहीं करता. तो हमको फासिकून वाली कैटेगरी में नहीं जाना है. हम पढ़ चुके हैं फासिक कौन होते हैं. अभी सूरह बकरा की शुरुआत में हमने पढ़े फासिक वो होते हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और जो रिश्ते तोड़ते हैं, और जो जमीन में फसाद करते हैं, खून बहाते हैं, वो फासिक होते हैं. अल्लाह ताला हमको अपनी नाफरमानी से बचाए. ओवर टू ज़ैनब बाजी. ये तो हो गई ना, 99 हो गई. ओके बाजी, 100 करते हैं इंशाल्लाह. कि आप 100 और 101 करो तो हम 102 यस, 100 एंड 101 करेंगे बाजी. एंड 102 से जो टॉपिक है अपना, तो वो बहुत अच्छा होगा कि हम उसको वेडनेसडे को ही करें, बिकॉज बट वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह टुडे ओनली. इट इज अ वेरी वाइड टॉपिक. 100 और 101 में तो कुछ भी नहीं है, 2 लाइन की. यस जी, 100 करते हैं. आप सबको मुबारक हो. आयत नंबर 100, वी हैव रीच्ड टू दैट 3 डिजिट नंबर. व कुल्लमा, क्या, व और, कुल्लमा जब कभी, क्या और जब कभी, आहदू, देखिए क्वेश्चन है ना, क्या से शुरू हो रहा है. क्या और जब कभी, आहदू उन्होंने अहद किया, उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया, आहदन कोई प्रॉमिस, कोई अहद, नबदहू फेंक दिया उसे, हु प्रॉमिस को, नबज़ फेंक दिया, तोड़ दिया, ना कदरी की, हु उस प्रॉमिस की, उस प्रॉमिस को फेंक दिया, तोड़ दिया, उसको फुलफिल नहीं किया. किसने, फरीकुन एक फरीक ने,
एक ग्रुप ने, फरीक कहते ग्रोह को, ग्रुप को, यानी अ बंच ऑफ पीपल, मिनहुम उनमें से, मिनहुम उनमें से, ये हुम कौन है? बनी इसराइल, बनी इसराइल में से, बल बल्कि, बल बल्कि, सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। देखिए बल जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है बल्कि का, बल्कि अक्सरुहुम, अक्सर उनमें से, ज्यादातर उनमें से, मोस्ट ऑफ देम, ला युमिनून, नहीं वो ईमान रखते, नहीं वो ईमान लाते। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये जो फासिक होते हैं, ये फासिक ज्यादातर क्या करते हैं? जब भी वादा करते हैं उस वादे को तोड़ देते हैं, यानी ऐसे ही बोलने के लिए बोल देते हैं और फिर उस वादे को फुलफिल नहीं करते। न बजवर्ड आए यहाँ पर, फेंक देना यानी तोड़ देते हैं। एक ग्रोह उनमें से। जी बाजी। कौन से वादे तोड़े, जरा पूछ लो इन लोगों से, याद है कौन से वादे तोड़े थे इन्होंने? बताइए, कौन हाथ ऊपर करेगा? कौन से वादे तोड़े थे बनी इसराइल ने? बताओ। पहाड़ को छतरी के जैसा ऊपर उठाया तो बोले हम मान लेंगे, और बाद में जब छतरी पहाड़ हटा दिया तो बदल गए। सैटरडे को नहीं पकड़ना बोले थे तो सैटरडे को खुद अल्लाह से चीटिंग करें और जुमा को डाल दिए जाल। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि खाने को जमा करके नहीं रखना, और तुमने जुल्म हम पे नहीं किया, खुद पे जुल्म किया, तो फिर वो खाना जमा कर करके रखे और खाए और बीमार पड़े। जितने वादे अल्लाह ने किए थे वो आप जब ये क्लास हो जाएगी उसके बाद देखना, तकरीबन there are at least 8 to 9 promises which they said yes and then they refused. वो इनको करने दो होमवर्क बेटा। यस बाजी। आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे भी, आप लोग जरूर बताइए कि कितने वादे कौन कौन से तोड़े थे इन शॉर्ट, इंशाल्लाह। और जो बाजी ने अभी बताया उसमें और एडिशन में भी एक दो और कर देती हूँ तो आपको याद भी हो जाएगा। नहीं कर दूं? नहीं करो। हाँ जी। तो उन लोगों से कहा गया था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम कोहतूर पर गए तो पीछे से फिर बछड़े को माबूद बना लिया। और अपना फिर जब जरा पूछ जो हम लोग यस क्या कितना अच्छे से बोले थे, वो फहीम थी शायद कोई, और बोले नहीं हम लोग बछड़े की पूजा नहीं करते। याद आया अंजुम? जी आ गया बाजी। हाँ, तो फिर जब उनको पता चला तो बोले हाँ करते। किसकी करते बताइए जरा, कौन? जरा हाथ उठाने दे बेटा, देखेंगे लोग याद रहता है। अपना बछड़ा कौन है, हम किसकी इबादत करते जरा बताओ। लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ये। समीना, चांद, अनम्यूट देम अनम। हमारा बछड़ा कौन सा है? यस नीलोफर मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। हमारा नफ्स अल्लाह ताला, हमारा नफ्स है। हाँ, अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि हमारा नफ्स। हाँ, और चांद? और बताओ चांद। एक ही है बच्चा हमारा। उसके बाद एक दिया ना जवाब तो हेलो। हाँ जी, जब हम किसी के पास कुछ चीज देखते हैं तो हमको ख्वाहिश होती है हमको भी मिले, तो फिर ये बछड़ा ही हुआ ना वो चीज की वो तो तलब नफ्स करना। आ गया, वो नफ्स में जी वो हाँ, नफ्स जी में आ गया। यू आर राइट, बट इट इज इन द नफ्स। नफ्स। जी दूसरा वेस्टर्न कल्चर नहीं है क्या? वेस्टर्न कल्चर, जो लड़की इंग्लिश में बात करेगी और जीन्स पहनेगी उसकी जल्दी से शादी हो जाएगी। जो शलवार कमीज पहनेगी वो तो मुलाजिमा है, उससे कोई प्रपोजल नहीं आएगा। ओवर टू अंजुम। यस बाजी। यहाँ पे बॉक्स में भी जवाब आए हैं कि हमारी नफ्स, फिर वेस्टर्न कल्चर, हमारे बच्चे, माल, इज्जत, माल, और यस अल्लाह अकबर। वो लोग का तो एक ही बछड़ा था ना, अपने तो गिनेंगे तो 50 निकलेंगे बछड़े। एग्जैक्टली हमारी नींद, हमारा आराम, हमारी प्रायोरिटीज। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड। यस तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे कि ये सारे प्रॉमिसेस, ये फासिक वो होते हैं। कौन अल्लाह की आयतों पे ईमान नहीं लाता? फासिक। और फासिक वो होते हैं कि हर अल्लाह के वादे को मोस्टली तोड़ देते हैं, उसे इम्पोर्टेंस भी नहीं देते कि अल्लाह का किया हुआ वादा अल्लाह की आयतों में ही आया है। और फिर ऐसे ही लोग अक्सर उनमें से वो ईमान नहीं लाते, यानी भले वो जबान से कहते हैं हम मोमिन हैं, बट एक्चुअली वो फिर फासिक होते हैं।
अल्लाहु अकबर. दिस वाज आयत 101 भी कर लेते हैं. वलम्मा, और जब. अब देखिए फिर एक बात याद रखनी है ना हमको कि अगर हम अल्लाह की आयतों पे अमल नहीं करते हैं, अल्लाह की आयतों की नाफरमानी करते हैं, तो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? फिर फासिकून की कैटेगरी में आ जाते हैं. और फिर फासिक के लिए क्या है? उसके लिए अजाब है, यानी पनिशमेंट है. तो अभी अभी हम जो जन्नत में पहुंचकर कलेजी खाने की बात कर रहे थे कि हमको फिश की कलेजी मिल जाएगी नाश्ते में, तो बिफोर दैट वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स कि क्या हम अल्लाह के कौन सी आयतों पर अमल कर रहे हैं. अभी 100 हमारी हो गई, तो अब हमारे लिए होमवर्क है ना कि इन 100 आयत में हमने क्या क्या अल्लाह ने हमको ऑर्डर्स दिए, वो सब की हम लिस्ट बनाए और खुद अपना जायजा ले. और जो नहीं हुआ है अमल, तो उसको हम क्या करेंगे, उस पे फोकस करेंगे. वरना फिर वही बात हुई कि हमारे ही बारे में ये आयतें नाजिल हो रही. वी विल हैव टू चेक आवरसेल्व्स. सिर्फ बनी इसराइल की बात नहीं हो रही है, वी हैव टू चेक आवर अमल. अभी बाजी कह रहे थे कि नंबर पे नहीं जाना है, अमल पे कर देखना है हमको. तो बिल्कुल वी विल चेक आवर ओन अमल और लिस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह. आज ही बनाएंगे तो बनेगी, वरना नहीं बनती है. और वेडनेसडे की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट इट इंशाल्लाह. ओके, सो दैट विल बी द होमवर्क. करेंगे ना होमवर्क? कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर उठाओ जल्दी जल्दी. इंशाल्लाह बोलो, इंशाल्लाह. यस, इंशाल्लाह. हाथ ऊपर आ रहे माशाल्लाह. तो यानी सबने होमवर्क सुन लिया है. हाथ ऊपर आ गए तो, और करेंगे भी इंशाल्लाह. यस, आयत नंबर 101 कर लेती बाजी. वलम्मा, और जब. जाअहुम, आया उनके पास, और जब आ गया उनके पास. रसूलुन, कोई रसूल. मिन इंदिल्लाह, कहाँ से आते हैं रसूल? अल्लाह की तरफ से. अल्लाह की तरफ से. मिन इंदिल्लाह का मतलब अल्लाह की तरफ से. कैसे? मुसद्दिकुल लिमा, तस्दीक करने वाला, कंफर्म करने वाला. लिमा, लिए जो. माअहुम, साथ था उनके, पास था उनके. माअहुम को अंडरलाइन करके तौरात और इंजील लिख लेंगे हम कि उनके पास अल्लाह की ये किताबें मौजूद थी. तो जब भी कोई रसूल आया उस किताब को प्रूव करने के लिए, तो क्या किया उन्होंने? नबज़, फिर से वही वर्ड आया, फेंक दिया. नबज़, फेंक दिया. फरीकुन, एक फरीक ने, एक ग्रोह ने. मिनल लजीना, उनमें से जो. ऊतुल किताब, जो दिए गए किताब. ऊतुल किताब, दिए गए किताब, यानी अहले किताब जिनके पास तौरात और इंजिल आ गई थी, उन्होंने फेंक दिया. क्या फेंक दिया? किताब अल्लाह ही, किताब अल्लाह की. किताब अल्लाह की. वरा, पीछे. वरा, पीछे. कहाँ फेंकी उन्होंने? बैक साइड. जुहूरिहिम, पीठों के अपनी. बिहाइंड देयर बैक्स, अपनी पीठों के पीछे कर दिया. कअन्नहुम, क डंडी वाला काफ है, क जैसे की. अन्नहुम, बेशक वो. ला यअलमून, नहीं वो इल्म रखते. एज इफ दे डोंट हैव एनी नॉलेज. एज इफ, उन्होंने ऐसे उस किताब को पीछे रख दिया जैसे कि उनके पास कोई इल्म ना हो, वो कुछ नहीं जानते हो. ऐसे उन्होंने अपनी किताबों को अल्लाह की किताबों को अपनी पीठ के पीछे डाल दिया. अब ये क्या होता है पीठ के पीछे डालना? देखते हैं. पहले देखिए इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कभी अल्लाह के कोई रसूल आए अल्लाह की तरफ से, और वो आते क्या क्या करने के लिए आते थे अल्लाह के रसूल? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए. तो फिर हर रसूल क्या करता था? तस्दीक करता था. उनसे पहली आई किताब की वो कंफर्मेशन देते थे कि यस, हमसे पहले जो रसूल आए थे, हमसे पहले जो किताब आई थी, वो उसी को कंफर्म करने वाली बात करते, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं. तो वो लोग क्या करते हैं? अल्लाह ताला बता रहे हमको नहीं मालूम कुछ भी, अल्लाह सुब्हानहू ताला बता रहे. तो वो फेंक देता. उनमें से एक ग्रोह क्या करता?
फेंक देता उस किताब को। और यही वो लोग थे जिनको किताब मिली हुई थी। तो कब फेंक देता है कोई चीज? जब उसकी कदर ना हो, उसकी इम्पोर्टेंस ना महसूस करे, तब वो फेंक देता है पीठ के पीछे। और अल्लाह ताला फिर से फोकस करवा रहे हमको कि किसको फेंका? किताब अल्लाह की किताब को। स्कूल की बुक्स को नहीं फेंकते। कब फेंकते स्कूल की बुक को? जब 5th स्टैंडर्ड खत्म हो गया और 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो फिर 5th की बुक रद्दी में जाती है या किसी और को दे देते हैं, या बच्चे लोग उसको फाड़ के उसकी बोट बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, क्योंकि अभी 5th का सिलेबस खत्म हो गया तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड में पढ़े तो सही ना, एग्जाम देने के लिए उतनी तो कदर होती है। बट यहाँ पर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे किसको फेंका? अल्लाह की किताब को। कहाँ फेंका? अपनी पीठों के पीछे कर दिया, क्योंकि अब तो दूसरी किताब आने वाली है नहीं। तो उसी किताब को इतना उससे यानी उसको कोई कदर नहीं की, इम्पोर्टेंस नहीं दी कि अल्लाह का कलाम। पीछे फेंकने का मतलब क्या होता है? हम लोग कौन सी चीज पीछे फेंक देते हैं? कि जिसकी जरूरत ना हो, जिसकी जो हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगती। अगर हम किचन के शेल्फ में भी चेक करें हमारे, तो कौन सी चीज आगे रखते हैं, कौन सी चीज पीछे रखते हैं? जिसकी जरूरत पड़ती है रोज वो आगे रहती है, और कभी कभी जिसकी जरूरत पड़ती है वो पीछे रहती है। हमारे कपड़ा इसमें भी क्या रहता है? क्लोजेट में, वार्डरोब में जो कपड़े रोज पहनने के लिए चाहिए वो आगे, जो शादी ब्याह में पार्टी में पहनते हैं वो पीछे रखते हैं कभी कभी पहनने वाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्होंने भी एक कभी कभी पढ़ने वाली किताब बना ली है। जैसे हम भी रमजान में निकालते हैं कुरान, या किसी की मैयत होती है तब, नाउजुबिल्लाह, ये ऐसा काम करते हैं जैसे कि वो जानते ही ना हो कि अल्लाह की किताब है। ये इम्पोर्टेंस है अल्लाह की किताब का। अस्तगफिरुल्लाह। वो टू ज़ैनब जी। मेरी शायरी जरा 2 अशार हाँ बाजी, वी आर मिसिंग योर अशार। पे खिदमत है, सुन लीजिए। इन्हीं आयतों पर है। ए इंसान, जो गम तेरा है वो मेरा भी है। अभी लॉकडाउन में तो बहुत मिलते जुलते गम है हम सबके। ए इंसान, जो गम तेरा है वो मेरा भी है। बगैर कुरान के सूनी थी जिंदगी, सूना नजारा भी। ये अल्लाह के करम से मैंने लिखे हैं। ए इंसान, जो गम तेरा है वो मेरा भी है। बगैर कुरान के सूनी थी जिंदगी, सूना नजारा भी। सिवाय कुरान के कोई मुझे जीत ही नहीं पाया। सिवाय कुरान के कोई मुझे जीत ही नहीं पाया। कुरान ही से दिल को सुकून मिला सहारा भी। कुरान ही से दिल को सुकून मिला सहारा भी। मैं भी भटकती थी, जब भी मॉल नहीं होते थे, एल्को मार्केट होती थी, तो वहाँ वो दही पूरी कुछ मिलती थी, बहुत अच्छी मिलती थी। बहन आती थी नासिक से तो उसको लेके जाती थी, फिर हम लोग वहाँ वो दही पूरी खाते थे। ये अपनी अंजुम की सास, ये लोग बहुत कम आते थे तो इसलिए लेके जाती थी, जब भी सस्ती मिलती थी बहुत। अभी तो क्या मालूम, अभी तो लॉकडाउन में मालूम नहीं मेरे को, मगर उसके दाम बढ़ बढ़ के मेरे को लगता है 300 रुपए की प्लेट हो गई। वो सिंधी बनाता था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी भटकती थी ना। अभी पहले कुरान नहीं था, बहुत ज्यादा टाइम होता था और किसी ने मना भी नहीं किया था, तो अल्लाह भी माफ कर दे हमको। हमने कितना वक्त जाया किया, बुरा काम नहीं किया था। मेहमान नवाजी करना तो जरूरी है। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। अभी मैं वो बोलने वाली थी तो अंजुम भी चली गई स्कूल के ऊपर बराबर, और मेरे दिल में भी वही बात थी, तो मैं उसको इस तरह से बोलना चाह रही थी। अंजुम खुद LLB है और बच्चे तो स्कूल में है, तो अभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अंजुम की बात कर रही हूँ, कनीस की बात कर रही हूँ, और जरीना जो भी वहाँ है, अपनी नाज़नीन है वहाँ पर। ऑल 3 ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स एक्चुअली। तो जो भी हैं ग्रेजुएट हैं, आप MBA हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं आप। अभी डॉक्टर लोग को तो मेरे को लगता है कि वो किताबें है ना यूज करना पड़ती होगी, और लॉयर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो करना पड़ती होगी।
اور MBA والے بھی اگر بزنس کرتے تو کرنا پڑتی ہوگی. مگر اگر شادی سے پہلے آپ نے یہ سب سیکھ لیا تھا, بعد میں آپ کی شادی ہو گئی, پھر آپ کے بچے ہو گئے, پھر وہ کتابیں کدھر رہ گئی؟ ماں کے وہیں رہ گئی نا, وہ اندر بند ہو کے رہ گئی, اس کے اوپر سب گرد جم گئی. پھر وہ بچہ گھڑی گھڑی ناپاک کر دیتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے, تو جو بھی کرتا ہے بچہ اس کو نلانا پڑتا ہے. ارے باپ رے, بچے کے تو کتنے کام ہیں, اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو نلا, اس کو پوٹی کراؤ, اللہ تو رحم کر. تو میرے کو آپ لوگ کے اوپر, سب کے اوپر بہت رحم آتا ہے کہ آپ لوگ نے یہ سب کام کیے ہیں, مگر یہ سب اللہ کو بہت پسند ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور اگر خود کے نہیں تو بھائی کے, بہن کے. تو میں بولنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اس کام میں پڑ جاتے ہیں نا, تو پھر اپنی وہ جو سلیبس کی کتابیں تھی وہ تو کہیں اندر رہ جاتی ہے نا. اسی طرح سے جو چیزیں آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایک کسی نے اپنا ایک ڈراور جو کھولا, اس نے کئی سالوں کے بعد کھولا, تو اس میں سے ایک لیٹر نکلا, اور وہ لیٹر تھا اس کے, ہی اور شی واز اے میچور پرسن, مے بی 50 years old. وہ جب اس نے وہ اسٹور اپنا وہ ڈراور کھولا, تو اس میں سے ایک لیٹر نکلا جو اس کو اس کے ایک دوست نے یا سہیلی نے, وہ جب چوتھی میں تھی جب ہی لکھی تھی. تو اس وقت وہ چوتھی والی سہیلی یاد آئی, پھر اس کو فون کری. تو ہم کو جو چیزیں نہیں لگتی ہے وہ ہم کہاں ڈال دیتے, اسٹور روم میں ڈال دیتے, اور پھر بھول بھی جاتے کہ اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے. اور وہی حال ہمارا ہم نے قرآن کے ساتھ کر لیا ہے. ایسے خوبصورت جلدان میں باندھ کے اس کو ایسی جگہ پہ چڑھا دیا ہے اوپر کہ وہاں کبھی ہاتھ پہنچے ہی نہیں, اور اگر پہنچے تو گر کے ہڈی توڑ کے بیٹھ جائیں, تو پھر تو کچھ کھانا بھی نہیں پکائیں اور قرآن بھی نہیں پڑھے. ایسا آپ لوگ نہیں ہو, میں ایسا بول رہی ہوں جن کی جو قرآن سے دور ہیں. اب دیکھیے آج ہمارا کیا حال ہے, قرآن کو چھپا دیا, لا کی کتابیں, میڈیسن کی کتابوں سے گھروں کو سجا دیا, غیر اہم سمجھا قرآن کو, جیسے اس کو پہچانتے ہی نہیں. بچپن میں تلاوت سیکھی, پھر پوری زندگی ہم کیا کرتے ہیں, آپا رکھتے ہیں قرآن پڑھنے کو, مولوی صاحب کو رکھتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کو. جیسے ہی قرآن شریف ہو گیا, میں کلاس میں ہمیشہ بولتی ہوں, اللہ کے واسطے ان لوگ کو ہار پھول اور جوڑا دے کے رخصت مت کرو زندگی بھر کے لیے. pay them again and let them come, because school education and college education we keep on taking till we die. What about Quran's education? ہو گیا, بولے ہمارا ہو گیا, وہ کھانا کھلا دو, ملا نیما کو سوٹ دے دو, پیسے دے دو اور ہکال دو, خلاص. وہ بیچاری ڈر کے مارے پھر کبھی شکل بھی نہیں بتاتی, خالی عید پہ آتی ہوئیں گی. اور ایک تو میں یہ بولتی ہوں, روز بولتی ہوں کہ why she should be an old lady wearing burqa and not smiling at all. Why? میتھس کی ٹیچر اور دوسری ٹیچریں کیسی ہوتی ہیں؟ ہاں مراٹھی کی ہوتی ہیں ایسی کبھی کبھی کہ ہنستی نہیں کبھی بھی. بچے لوگ کو مراٹھی اچھا بھی نہیں لگتا ہے, ابھی کیا کریں گے, مگر پڑھنا تو ہے نا. تو قرآن کی کالج کی بچیاں ہونی چاہیے اینم جیسی, کنیز جیسی, ایک دم اچھے کپڑے پہنے اور ایک دم ینگ دکھیں, اور مسکراتے آزو بازو کے 4 بچے پکڑ کے تم خالی عربی کی تلاوت تو سکھاؤ, اللہ کے واسطے کرو. بیکاز جبھی جو بھی قرآن شریف کی ان لوگ کو تلاوت سکھانے جاتا ہے نا, اس کو دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے. ایک تو داڑھی بھی ہونا چاہیے, ٹوپی بھی ہونا چاہیے, اور بڈھا انسان ہونا چاہیے. Where are these? In neither it is in Hadith nor it is in Quran that the one who teaches Quran should not talk English. English تو گالی ہو گئی. Anjum, do you agree with this? Yes, Baji. بچے ڈر جاتے سچ میں, they cannot relate with them. Yes. Never. ان کو دیکھ کے ہی ان لوگ بچے رونے لگتے ہیں, اور ہم بھی ان کو بھگا ڈالتے ہیں. جب بچے کو تھوڑا پیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بولتے ہیں ابھی ہو گیا, ابھی جا, تو آنا نہیں زندگی بھر, کیونکہ 500 روپے بچیں گے. I'm so sorry. لپسٹک لیں گے 2000 کی ایک, اور ملا نیما کو اگر 500 بھر. ابھی میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ وہ 5000 روپے دیتے تھے قرآن پڑھانے والوں کو مہینے کا. ایسے بھی ہیں لوگ. تو ایسا کیوں؟ ہم نے خود ذلیل کیا ہے نا, ہم نے خود قرآن کو بالکل اہمیت نہیں دی ہے. وہ آپا آئی, بچہ گھر میں نہیں ہے, آپا کو باہر سے بھگا دیے. اور بچہ گھر میں نہیں ہے, میتھس کی ٹیچر آئی,
फ्रॉक पहन के घुंघरू बाल वाली लिपस्टिक लगा के उसको उसके पास बैठ गए 1 घंटा, उससे अच्छी अच्छी इंग्लिश में बातें किए, उसको चाय भी दिए, केक भी दिए, फिर उसको जाने दिए। व्हाट नॉनसेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हमारी साइकोलॉजी क्या है मुसलमानों की? मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, दूसरों की नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो अभी हमारा कुरान को छुपा दिया, और फिर हम सामने क्या रखते हैं? इस्तेमाल करने के बर्तन, डिनर सेट जो रोज इस्तेमाल होता है, उसको कहाँ रखते हैं? जो नहीं इस्तेमाल होता है। वैसे बहुत लड़ते हैं कि कुरान को पीठ मत दिखाओ। अभी इसका भी है ना, इसको रॉन्ग तरह से इंटरप्रेट किया गया है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो टीचर्स की पीठ तो कुपारे को दिखती है और स्टूडेंट्स की नहीं दिखती है। तो फिर बोले नहीं पढ़ाने का, बोले क्लास नहीं लेने की। ले, हम लोग को तो कोई ना कोई बहानेबाजी चाहिए। जाकर आपके बच्चे को जो डिग्रीज लेते हैं, मुसलमानों के पढ़े लिखे बच्चों की बात है, जिनको रीडिंग का बहुत शौक है, उनकी जिंदगी में कुरान की क्या अहमियत है? हमने कुरान को इतना ऊपर रख दिया है कि हाथ ही ना पहुंचे। क्यों नहीं खोलते? बेअदबी होगी। हम रोज क्यों नहीं पढ़ते? टाइम नहीं मिलता। नेचुरली अगर बेटी MBBS कर रही है तो कितनी दूसरी किताबें पढ़नी पड़ती है, वरना दुनिया के इम्तिहान में तो फेल हो जाएगी। आखिरत के इम्तिहान में नाकाम होगी तो कौन देखता है? किसको मालूम पड़ेगा? हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दुनिया इम्तिहान के लिए किताब पढ़ना जरूरी है, आखिरत के इम्तिहान के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। अल्लाह की किताब से इतने बेगाने जैसे अनजान हो। अरबी में कैसे पढ़े? अंग्रेजी कैसे आ गई? हाँ, कनाडा में रहने नहीं मिलेगा जब तक कि अंग्रेजी नहीं आएगी, तो फिर सीख ली अंग्रेजी। और जन्नत में जाने नहीं मिलेगा अगर अरबी नहीं सीखोगे, मतलब लैंग्वेज नहीं, कुरान को समझना। जब खुद समझेंगे तब लोगों को समझा सकेंगे ना। खुद को, अभी मैं रोज बोलती थी मच्छी की कलेजी, और मेरे बच्चे भी हंसते थे, मैं भी हंसती थी, मगर मेरे पास प्रूफ नहीं था। आज मुझे प्रूफ मिल गया उसका। बाकी सारी, और ये नहीं समझना कि जो बंदा या बंदी ये समझे कि मुझे सब कुछ आता है, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं होता। मरने तक सीखना है। बाकी सारी किताबें इस्लामिक स्कूल में भी इंसान की लिखी हुई हैं। मुश्किल ये है कि कुरान पढ़ाने के लिए ट्रेन टीचर्स भी नहीं मिलते। मैथ्स के मिल जाएंगे, कुरान के नहीं मिलेंगे। जो खुद की रूह में कुरान को उतारें, अमल बदलें। फिर पढ़ाई कुरान का पढ़ाना भी एक तरीका डिमांड करता है। हमारे पास भी वक्त नहीं, हमारे बच्चों के पास भी वक्त नहीं। फ्रेंच मैथ सीख लेंगे मगर कुरान नहीं सीखेंगे। ओवर टू अंजुम। जी बाजी, छोटी सी 2 स्टोरीज बताती हूँ क्विकली। कभी कभी स्टोरी से भी बात समझ में आती है ना। तो मैंने ये बयान में सुनी थी कि एक फादर था और it is authentic from Sahih Bukhari or something, or it is just made up? No, it is not हदीस नहीं है बाजी, स्टोरी बता रही हूँ। स्टोरी रियल स्टोरी है। हाँ, रियल स्टोरीज, 2 रियल स्टोरीज बता रही हूँ मैं, जैसे होती है हमारे साथ एवरीडे वैसे ही। अच्छा। कि एक फादर, और ये रोज होता है, हर फैमिली में ये होता है, वही बता रही हूँ कि एक फादर था और एक उसका बेटा। अभी बेटे लोग बड़े होते तो क्या चाहिए? छोटे रहते तो बंदूक चाहिए खेलने के लिए, बड़े होते तो बाइक चाहिए उड़ाने के लिए। तो वो फादर को बोला, भाई मुझे बाइक चाहिए, और अगर आप मुझे बाइक नहीं देंगे ना, आप मेरे को कुछ भी नहीं देते। बोले रोज आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। तो अभी मेरा रिजल्ट आएगा डैडी, और मेरे को रिजल्ट के दिन है ना बाइक चाहिए, मेरा रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। तो डैडी भी सोच रहे कि 18 साल का 20 साल का जो भी हो गया है बच्चा, तो उसको बोलते, कुछ नहीं बोलते। अब बाप फादर कैसे होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली, बेटे को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाने का है, तो कुछ बोलते नहीं है। अब वो रिजल्ट लेके आता है, तो फादर वहां बैठे, रिजल्ट लाता है, बोलते देखो डैडी मैं फर्स्ट आया, मैं बोला था मैं फर्स्ट आऊंगा, चलो बताओ मेरी किधर है बाइक। तो फादर सिर्फ स्माइल करते हैं, उसको बोलते हैं वेरी गुड बेटा, अच्छा किया तुमने। बोले मेरे को और कुछ नहीं सुनना है, मेरे को आज बाइक चाहिए, बस बाइक दिलाओ मेरे को, चलो। तो उसके बाद डैडी बोलते अच्छा मेरी बात तो सुन, ये देख मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। तो बोलते क्या है? देखता है तो उनके हाथ में कुरान रहता है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इतना नाराज होता है, वो पैर पटक के वहां से चला गया। बोला कि आप तो ऐसे ही करते हो, कभी मुझे दोगे नहीं, और दे क्या रहे हो? कुरान। मैंने मांगा बाइक। वो बोला आज के बाद अब्बा मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखने वाला, मैं जा रहा हूँ, अब मैं कमा सकता हूँ, बड़ा हो गया हूँ और डिग्री भी मिल गई, व्हाटएवर,
अब मैं नहीं आऊंगा इस घर में वापस, चला गया वो। अब वो बाप उसको आवाजें लगा रहा है पीछे से, सुन तो सही, देख तो सही, वो क्या सुनता है, वो अपनी स्पीड में निकल गया, वो सच में घर पे नहीं आया, वो चला गया। अब उसको जॉब भी मिल गई। अब कुछ सालों बाद जब उसको मालूम पड़ता है कि है ना उसके अब्बा गुजर गए, तो जब भी फिर वो आता है, एहसास तो होता है ना बाप का, आया वो घर पे, फिर वो सब चीजें देखता है, घर अपना, इतने सालों से मैं घर में नहीं हूँ। फिर वो डैडी के रूम में जाता है, तो उसको वहां शेल्फ पे वही कुरान दिखता है जो उसको उस दिन अब्बा दे रहे थे, वो अच्छे से कवर किया हुआ था ना एज अ गिफ्ट रैप। तो फिर उसके आंसू बह निकलते। अब वो बड़ा हो गया ना, थोड़ा मैच्योरिटी भी आ गई, समझदार हो गया, खुद भी शायद बाप बन गया था। तो फिर वो कुरान को हाथ लगाता है, खोलता है कि मेरे अब्बा मेरे लिए लाए थे। अंदर देखता है तो बाइक खरीदी थी उन्होंने उसके लिए, और उसकी रिसीट और चाबी थी उसके अंदर। अल्लाहु अकबर। ये मैं बताना चाह रही थी कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी हमने किसको देकर रखी है, सिर्फ इन चीजों को। और कुरान जब सामने दिखता है तो एक्चुअली बच्चे हमारे इतना बोलते कि क्या सिर्फ कुरान की बात करते हो, अभी कुरान पढ़ूं मैं, अभी थोड़ी देर, अभी तो आई हूँ कॉलेज से, अभी मुझे कुछ, आप मम्मा रिलैक्स भी नहीं होने देते हो, फोन पे दोस्त से बात भी नहीं करने देते हो, एक ही बात करते हो, कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो। Allahu Akbar. This was the story, Waji. Okay, this was the story, but I can narrate a सच्चा वाकया जो बैंड्रा में हुआ है। सच्चा वाकया। एक लड़का था, उसको बर्थडे गिफ्ट दिया उसके बाप ने, बाइक लेके दिया, वो बाइक पे गया और मर गया, एक्सीडेंट हो गया वही दिन। ये सच्चा वाकया। Yes, Waji, I know. अपना बैंड्रा में हुआ था, ये बैंड्रा में हुआ था, exactly. अल्लाहु अकबर। मतलब थोड़े लॉकडाउन से पहले हुआ था। हाँ, रिसेंटली पता है मुझे, यंग बच्चे थे, वही मर गया वो बेचारा लड़का, वही खत्म हो गया, राइट। अल्लाहु अकबर। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग गिविंग बाइक, हमारा तो उसमें से मॉरल जो हमको निकालना है वो यही इस आयत से रिलेटेड था कि हमने कुरान को इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी नहीं दिए, उसे पीठ पीछे डाल दिए हैं। आयत 102 करते हैं। बाजी was waiting for this आयत, even I am waiting। 102 and 103 बहुत जबरदस्त, बिल्कुल टॉपिक चेंज, और बहुत मजा भी आएगा लेडीज को, बहुत